Today we are going to start our exercise 11.2, and before starting just let us revise formulas related in this exercise. Area of trapezium is equals to half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them. This is the trapezium and these are its parallel sides, and this is the perpendicular distance between these two parallel sides. So the formula for this is half into a plus b into h, that is the sum of two parallel sides into perpendicular distance between them. Now area of quadrilateral is equals to half into diagonal into sum of perpendicular distance on diagonal from opposite vertices. दैट इज ये एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये एक डायगनल है. इस डायगनल पे अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं उनका मेजरमेंट इज h1 and h2 and the measurement of diagonal, this we are taking it as d. So formula for area of quadrilateral is half into this diagonal measurement into h1 plus h2. So sum of these perpendicular distance on diagonal from opposite vertices. Now area of rhombus. A rhombus is a figure having all four sides equal. So for that area of rhombus formula is half into product of these diagonals. ये diagonals जो है इनका प्रोडक्ट होता है, दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2. नाउ एक्सरसाइज 11.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक टेबल का टॉप है जो कि ट्रेपीजियम की शेप में है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप. सो दिस इज अ ट्रेपीजियम शेप टेबल टॉप. So formula for trapezium is half into a plus b into h, that is sum of parallel sides multiplied by height. And parallel sides are given to us 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance is given to us 0.8 meter. So we'll put them in the formula and after calculating we'll get our answer as 0.88 meter square. Now question 2. In question 2, the area of a trapezium is 34 centimeter square. ट्रेपीजियम का एरिया हमें गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और वन ऑफ द पैरेलल साइड इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम. वही फॉर्मूला में पुट करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. एरिया हमें गिवन है, एक साइड हमें गिवन है और एच गिवन है. तो अब इस हाफ से, हाफ के जो नीचे 2 है उस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो इट विल बी 2. यहाँ 2 है. अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो और ये बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड में आके 34/2 विल गिव अस 17 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस बी. अब ये 10 इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का आएगा तो 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू बी, दैट इज 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बी. सो द मेजरमेंट ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 centimeter. Now next question is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equals to 48 meter, CD is equals to 17 meter and AD is equals to 40 meter. यहाँ पे एक ABCD एक ट्रेपीजियम की शेप का फिगर गिवन है, उसमें उसकी लेंथ ऑफ द फेंस दैट मीन्स कि उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 120 मीटर. फेंस का लेंथ दैट मीन्स कि जो भी अगर तार या जो भी यूज़ हुआ है यहाँ पर फेंसिंग के लिए उसका हमें लेंथ गिवन है टोटल, वो 120 मीटर गिवन है. अब इसमें ये जो BC है ये 48 मीटर है, CD जो है वो 17 मीटर है और AD हमें गिवन है 40 मीटर. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फील्ड. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. That means these two are the parallel sides and this is the perpendicular. But we don't know the measurement of the perpendicular, but we have the perimeter of the figure and we know the 3 sides of the figure. And perimeter of any figure is sum of all the sides. So that is sum of all the sides. So 120 will be equal to AB plus this 48 plus 17 plus 40 and so that will be equal to AB plus 105 meter. 120 will be equal to AB plus 105 मीटर और 105 को इधर शिफ्ट करेंगे तो AB का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा 15 मीटर. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 15 मीटर.
अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, दोनों पैरेलल साइड्स पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फील्ड. ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, दैट विल बी हाफ इंटू a प्लस b इंटू h, दैट इज हाफ इंटू 40 plus 48 into h is 15 meter. So after calculating, we'll have the area of this field as 660 meter square. Now next is the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. As I've already told you the formula of area of quadrilateral, if one of the diagonal and the vertices अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर्स है उनका मेजरमेंट हमें पता है और डायगोनल का मेजरमेंट पता है, विल पुट इन दिस फॉर्मूला. सो दैट इज हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2. So that will be equal to half into diagonal measurement is 24 into this is 13 and this is 8 meter. So 13 meter plus 8 meter will be equal to 21 meter. So that will be half into 24 meter into 21 meter, and after solving this we'll get area of this quadrilateral as 252 meter square. Next question is the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Diagonals का measurement हमें given है, area of rhombus find करना है, तो formula for that is half into product of the diagonals, that is half into d1 into d2. So that will be equal to half into 7.5 centimeter into 12 centimeter, and that answer will be equal to 45 centimeter square after solving this. Next is find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. As we are aware of this that a rhombus is a type of a parallelogram, and formula for calculating area of parallelogram is b into h, that is base into height. So area of rhombus will be equal to b into h, that is base we are aware of, and एक altitude का measurement भी given है, that is 4.8, और हमें base that is side of the rhombus is given to us 5 centimeter. So after calculating this area will be equal to 24 centimeter. अब हमें एक डायगोनल पता है, दूसरी डायगोनल का मेजरमेंट वी हैव टू फाइंड आउट. एरिया हमने फाइंड कर लिया, एरिया तो सेम ही रहेगा अगर किसी भी चीज़ का है वो चाहे किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करें. सो एरिया विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन टू अस, दैट इज 8 centimeter, and then d1 will be equal to, after shifting this will get this 2 will get multiplied by 24 and this 8 will divide these by 8. So after solving this, the measurement of our diagonal is 6 centimeter. Next is the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. Now in this, area of one tile of rhombus shaped will calculate, and then 3000 tiles लगी हुई हैं तो पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस, दैट इज ₹4. सो टोटल एरिया पता होना चाहिए फ्लोर का, जो कि 3000 टाइल्स से बना हुआ है रोम्बस की शेप की. तो पहले हम एक का एरिया निकालेंगे, तो दैट विल बी हाफ इंटू d1 इंटू d2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, diagonals measurement is given to us 45 and 30. So after solving this we'll get 675 as the area of one tile. Then area of 3000 tiles will be equal to 3000 into 675. So that will be equal to 2025000 centimeter square. Now we have to convert, because cost is given to us in meter square. So we have to convert this into meter square first. सो फॉर कन्वर्टिंग, एक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और अब दो हो गए यहाँ पर सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि 10,000 से डिवाइड करेंगे तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर. सो विल गेट 202.5 मीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर इज ₹4. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस 202.5 meter square floor is equals to 4 into 202.5, that will be equal to 810 rupees. Now question 8.
Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. ट्रेपीजियम शेप का एक फील्ड खरीदना है मोहन को, और जो उसकी साइड है अलोंग द रिवर की तरफ वो पैरेलल है और ट्वाइस है द साइड अलोंग द रोड की जो साइड है उससे ट्वाइस है रिवर की जो साइड है उसके। तो अगर ये x लेते हैं हम तो ये ट्वाइस हो गई, दैट इज 2x हो गई रिवर वाली साइड ट्रेपीजियम की फील्ड की। सो आफ्टर दैट नाउ इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 meter square and perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side along the river. इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है 100 मीटर and area of the field is given to us 10,500. We'll put these in the formula, that is half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them. So 10,500 will be equal to half into x plus 2x, this parallel sides into 100, and this will be x plus 2x will be equal to 3x, and इस 2 से ये 100 कैंसिल होके 50 मिल जाएगा, और ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, and we'll solve this and we'll get 210 meter is equals to this sum of these two sides, that is 3x, and we'll divide 210 by 3 and that will be equal to x, and that is 70 meter. So this length of side along road, x की वैल्यू हमें 70 मीटर मिली है, तो रिवर की साइड की 2x थी तो रिवर की साइड की हो जाएगी 2 into this 70, that is 140 meter. Now next is top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. ये octagon की शेप का है जो टॉप सरफेस है एक प्लेटफॉर्म का जो रेस किया गया उसका। तो अब उसके बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल सरफेस। अब यहाँ पर इसके लिए ये अगर हम इसको ऑक्टागन को डिवाइड करें, ये रेगुलर है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर की है तो दैट मीन्स ये सारी साइड्स ही 5 सेंटीमीटर हैं। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये एक ट्रेपीजियम हो गया, और ये दोनों ट्रेपीजियम जो हैं वो सेम मेजरमेंट के हैं। ये साइड 5 हो जाएगी और ये साइड हमें गिवन है 11, तो ये 11 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विल हैव द एरियाज ऑफ दीज 2 ट्रेपीजियम्स, एंड आफ्टर दैट विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस rectangle, that is L into B. So first of all we'll find out the area of this ABCH. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन टू अस 4 मीटर, और साइड जो थी वो सब सारी इक्वल होती हैं, तो एक अगर हमें 5 गिवन तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5। तो वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 5 एंड अदर इज 11, so we'll put them in the formula. So half into 5 plus 11 into 4, that will be, after solving this we'll get the area of this trapezium as 32 meter square. Then area of this rectangle is equals to L into B, so that is 11 meter length हो गई और 5 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, तो 11 into 5 that is 55 मीटर स्क्वायर। अब जो ये नीचे ट्रेपीजियम है इसका मेजरमेंट बिल्कुल वही, इसका एरिया वही होगा जो ऊपर वाले का है। ऊपर वाले का एरिया 32 निकला था तो इसका भी 32 रहेगा। तो अब एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम्स प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो दैट इज 32 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 52 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 119 मीटर स्क्वायर। Next is question 10. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. ये फिगर में हमें एक पेंटागोनल शेप पार्क दिखाया गया है। अब इसको फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड काव्या डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज में ज्योति और काव्या ने इसको डिवाइड कर दिया, इसका एरिया फाइंड करना था उसके लिए। अब इनका हमें 2 वेज से एरिया फाइंड करना है। अब ज्योति का वे क्या था डिविडेशन का कि उसने 2 ट्रेपीजियम्स में डिवाइड कर दिया, दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। अब ये जो सी ई है ये यहाँ डिवाइड हुआ है तो हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाएगा, तो सी ई जो था वो 15 था, तो सी डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस 15 दैट इज 7.5 मीटर्स। एंड देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, दिस विल बी इक्वल टू, ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल साइड में ये 15 गिवन है और ये 30 गिवन है,
तो we'll put them in the formula. Half into 15 plus 30 will be 45 into 7.5. This is 7.5. Then half into 45 into 7.5, that will be equal to 168.75 meter square. Then area of this pentagon will be equal to, ये जो इसका एरिया और इसका एरिया सिमिलर होगा तो दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे हमने जो एरिया फाइंड किया है उससे, तो 2 इंटू 168.75 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 337.5 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ज्योति. नाउ विल कैलकुलेट द एरिया अकॉर्डिंग टू कविता. कविता ने यहाँ पर उसको एक ट्राइंगल और फिर ये एक स्क्वायर में हो गया है क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे. देखो ये 15 है, इधर का भी 15 हो गया, तो इट विल बी अ स्क्वायर. तो दैट मीन्स एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर में डिवाइड किया है. अब हमें पता है ये एक राइट ट्राइंगल होगा. देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज 15. अब इस और ये हमारा बेस हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू height, that is half into 15 into 15, that will be equal to 225 upon 2 meter square, that is equals to 112.5 meter square. Then area of square is equals to side into side, so that is equals to 15 meter into 15 meter, that is 225 meter square. So area of this figure will be equal to 112.5 plus 225, sum of these two figures, so that will be equal to 337.5 मीटर स्क्वायर. तो दोनों के ही वे से एरिया जो है वो सेम निकलेगा. नाउ क्वेश्चन 11th. डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस दिस. ये आउटर डायमेंशन 24 और 28 गिवन है इसके, और इनर डायमेंशंस हमें गिवन है 16 और 20. एंड हमें इसके जो ये सेक्शंस हैं इनका एरिया फाइंड करना है हर सेक्शन का फ्रेम के. अब इसमें ये गिवन है कि ये जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इनके हर सेक्शन की इक्वल है. तो इसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स ये 28 था, तो ये बीच वाला हिस्सा हमारा 20 गिवन है, तो 28 माइनस 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 8. तो ये 8 इधर का और इधर का इक्वल है तो हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स ये हमारी हाइट हमारी आ गई यहाँ पर 8/2, दैट इज 4. सिमिलर वे में यहाँ पर भी ये 4 ही आ जाएगा. ये टोटल 24 था, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 24 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 8, और 8 का आधा करेंगे तो दैट विल बी 4. तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये विड्थ जो है वो 4 आ गई. दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 आ गया. अब यहाँ पर ये एक ट्रेपीजियम है, तो इस ट्रेपीजियम और इस ट्रेपीजियम के जो डायमेंशंस है वो सेम है. पैरेलल साइड्स जो है वो 16 और 20 हैं, और ये हाइट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 है. सिमिलर वे में फर्स्ट और थर्ड के जो मेजरमेंट्स डायमेंशंस हैं वो सेम है. यहाँ पर ये 28 और 20 हो गई पैरेलल साइड. सिमिलर वे यहाँ पर भी 20 और 28 है, और जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों की ही 4 है. तो विल फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर. दिस फिगर area, that is trapezium, that will be equal to half into sum of parallel sides into height. So half into 28 plus 20 into 4, that will be equal to 96 centimeter square after solving this. So area of this figure will be also equal to 96 centimeter square. Then area of second figure will be equal to half into a plus b into h, that is half into 24 plus 16 into h, that is 4. So after solving this we'll get 80 centimeter square. So area of this figure will also be equal to 80 centimeter square. तो हर section का area we have find it out. That is first का हमें मिल गया 96 and second का हमें मिल गया 80, इसका 96 and then इसका 80 मिल गया.